رات کے پہر بھی فیصل آباد کی مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال، شہریوں کی بڑی تعداد جانور خریدنے کے لیے نیا موانہ منڈی پہنچ گئی۔ شہری دوستوں اور بچوں کے ہمراہ من پسند جانور خریدنے میں مصروف ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں احمد سعد سے۔ جی احمد، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، رات کے پہر بھی یہاں پہ مویشی منڈی کی جو رونقیں ہیں وہ بحال ہیں۔ ہم اس ٹائم موجود ہیں نیا موانہ منڈی میں۔ یہاں پہ شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پہ اپنے دوستوں اور یہاں پہ اپنے بچوں کے ہمراہ آئی ہے۔ ہر کسی کی یہی کوشش ہے، کیونکہ ٹائم کم ہے، مقابلہ زیادہ ہے، کہ جلد از جلد عید قربانی کے لیے جانور خرید سکے۔ کوئی جو ہے ویڑے خریدنے میں مصروف ہے، تو کوئی جو ہے وہ بکرے۔ ادھر ہی شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اچھا بھائی جان بتائیے گا، کب سے منڈی میں آتے ہیں؟ ریٹس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں تقریباً 4 بجے سے منڈی میں آیا ہوں۔ 50 پر ریٹ بن لاسٹ ایئر جو میں نے لاکھ کا لیا ہے اب 3 لاکھ کا ہو گیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اب گھوم کے واپس گھر جانے لگے ہیں۔ اب روٹین سے پھر صبح آئیں گے، پھر یہی کام ہوگا۔ کوئی ریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگ رہا، کوئی وپاری بار ہماری۔ آپ بتائیے گا، آپ بھی گئے ہیں، کیا کہتے ہیں یہاں 2 دن میں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بیل خریدنا بالکل ناقابل، مطلب کہ خرید ہی نہیں سکتے ہم۔ اور اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ ویپاریوں کو بھی، کہ پچھلا کا ریٹ اتنا برابر ہو رہا ہے نا، کہ 1 لاکھ میں پہلے تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ 1,20,30 کا کر دے، لیکن انہوں نے بالکل 2-3 لاکھ تک 1 لاکھ کا بیل جو تھا وہ چلا گیا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ چیز وہی ہے، پھر بھی اس کے علاوہ جو ہے نا انہوں نے اتنا زیادہ ریٹ مطلب خراب کر رہے ہیں، نہ کہ بنا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ریٹ تھوڑا برابر کرے، تاکہ جو لوگ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ ہاں جی بالکل، جانور تو پسند ہے، لیکن جو ریٹس ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ابھی قربانی نہیں خرید سکے۔ اسی والے سے ہمارے پاس یہاں پہ اور بھی شہری موجود ہیں۔ اچھا وہ آپ کو ساتھ بتاتا چلوں، فیصل آباد کی کیونکہ جگتے مشہور ہیں، تو شہری یہاں پہ جو ہیں وہ عید قربان کے لیے جو جانور لینے ہیں، لیکن جگتے مارتے ہوئے پھر بھی نظر آ رہی ہیں، خوش دل جو ہے فیصل آبادی ہیں۔ تو بھائی جان بتائیے گا، کیا کہتے ہیں، ادھر جانور خریدنے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ پہلے آپ جگتے بھی مار رہے تھے، کیا کہتے ہیں؟ پاکستان زندہ باد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ پاس نہ ہو، ٹھیک ہے، جانور نہیں لینا ہے۔ کچھ یہ ڈرتے بھی ہیں، اس لیے پاس جاتے ہی نہیں ہیں۔ ویسے ماشاءاللہ ایسے جیسے ایک مکان والی کالونی ہوتی ہے تو یار ان کا ویسے ماشاءاللہ میڈیکل سٹور ہے، ادھر اتنے بیماروں کو چھوڑ کے یہ ادھر منڈی میں آئے ہیں صرف اس لیے کہ یار کوئی اچھی چیز مل جائے، بکرا مل جائے، گائے مل جائے، کوئی بھی چیز مل جائے۔ لیکن ادھر وہ بھائی سچ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہاتھ ہی نہیں لگ رہا کسی بھی چیز کو۔ یہی بات ہے، وہ 1 لاکھ والی چیز ہے جو 3 لاکھ کی ہوئی ہے، اور وپاری ایک بات کرتا ہے، اس کے بعد بات ہی نہیں سنتا، فرق بھی نہیں پڑتا، وہ بس ایک ریٹ کر کے بعد میں کہتے بس چلے جاؤ ادھر سے۔ اور یقین کرو میاں اتنے کلا ہی بیٹھا دکان دے اتنے کہ ایسے سارے اتنے آئے ہیں۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ زندہ دلانے فیصل آبادی ہیں، جو کہ جو ہے وہ بے شک یہ دوپہر سے منڈی میں آئے ہیں، کھاپ رہے ہیں جانور ڈھونڈنے کے لیے، جو ہے مشقت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جگتے جو ہیں ابھی تک جو ہے فیصل آبادیوں کی رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مویشی منڈیوں کے رونقیں اور دام عروج پر۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی مویشی منڈی میں بادشاہ نامی بکرے کے چرچے۔ بادشاہ نامی بکرا لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دیکھتے ہیں احمد ندیم کی رپورٹ۔ عید قربان کی آمد مختلف رنگ و نسل کے جانور مویشی منڈی کی زینت بننے لگے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی مویشی منڈی میں بادشاہ نامی بکرے کی دھوم۔ مالک کا کہنا تھا کہ بادشاہ کی قیمت 3,50,000 روپے ہے، اس کا وزن 100 کلو ہے۔ بادشاہ نامی بکرا پوری مویشی منڈی میں سب سے خوبصورت اور منفرد ہے۔ بادشاہ کی قیمت 2 لاکھ روپے مل رہی ہے، جبکہ میں اسے اسی قیمت میں فروخت کر کے جاؤں گا۔ اس کا 3,50,000 روپے اس کی قیمت ہے بادشاہ کی۔ بادشاہ کو بہت لوگ خوبصورتی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ جانور کی جو ہائٹ اور وزن جو 100 کلو گوشت کا جانور ہے، یہ اس کی قیمت اتنی بنتی ہے، لیکن پیسے کم لگتے ہیں۔ مجھے 2 لاکھ روپے اس کا آفر ہو گیا، اس کی قیمت 2,50,000 تک دے گا میں نے۔ مالک کا کہنا تھا کہ بادشاہ کا دام اچھا مل جائے تو ہماری عید بھی اچھی گزر جائے گی۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ عید قربان آئی، ڈھیروں خوشیاں لائی، گلیوں محلوں میں بچوں نے خوب ادھم مچائی۔ بچوں کی مویشیوں کے ساتھ خوب موج مستی، جانوروں کی خدمت میں پیش۔ کسی کو جگنو پر ناز تو کسی کو بچے کو ہے اپنے ٹنکو سے بہت پیار۔ مزید جانیں محمد علی نارو کی اس رپورٹ میں۔ بقرہ عید کی آمد کے ساتھ ہی گلی محلوں میں بچے مویشیوں کے پیچھے دوڑتے، ان کے ساتھ کھیلتے نظر آتے ہیں۔
बच्चा पार्टी ईद से पहले ईद कैसे मनाती है, आइए आपको दिखाते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाए गए मवेशी बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कहीं पर सहेलियां इकट्ठी होकर अपने बकरों की आओ भगत करने, चारा खिलाने और उनको सहलाने में मशगूल हैं, तो वहीं कुछ बच्चे अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर कैट वॉक करते नजर आते हैं। बच्चे कहते हैं हम अपने पसंदीदा मवेशी लेकर आए हैं, इनसे बहुत प्यार करते हैं, सारा दिन इनके साथ खेलते हैं। मुझे अपना बकरा बहुत पसंद है और मैं पापा साथ मंडी गई थी बकरा लेने और सुबह शाम इसका चारा खिलाती हूँ। मैंने इसका नाम जुगनू रखा है। ये मेरे बगैर चारा नहीं खाता। हम दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसी छोटी मैं हूँ वैसा मेरा मेमना है, हम सारा दिन खेलते हैं। हंसती मुस्कुराती नन्ही परियां रंग बिरंगे छतरों को प्यार करती और इनकी आओ भगत नाज नखरे उठाने में मसरूफ हैं। बोली बकरा मेरे बगैर खाना नहीं खाता, मैंने नाराज बकरे को मना लिया है, अब ये मुझसे नाराज नहीं होगा। बड़ों का कहना था बच्चों को मवेशियों के साथ खेलते देखकर खुशी होती है। मेरे पास 2 बकरे हैं, एक का नाम डिंकू है, एक का नाम बिंकू है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सुन्नत इब्राहिमी है, हम जानवर खरीद के लाए हैं, हमने यह बांधा हुआ, ये बच्चे इनके साथ खेलते हैं, हम इनको देख के खुश हो जाते हैं। बिलाशुबा ईद कुर्बान जहां एसारो कुर्बानी का दर्स देती है, वहीं बेजुबानों का बच्चों के साथ प्यार का ताल्लुक भी कायम कर देती है। ईद कुर्बान जहां अपने साथ बेशुमार खुशियां लेकर आती है, वहीं पर बच्चों का मवेशियों के साथ लगाव और उनकी देखभाल का जज्बा दीदनी होता है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियों में रौनकें। फैसलाबाद की खवातीन भी जानवरों की खरीदारी के लिए मंडी पहुंच गई। खवातीन का ऊँटों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार, ऊँट महंगे होने का शिकवा भी कर दिया। जानते हैं खजा लियाकत की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में ईद उल अजहा से कबल ऊँट की मंडियां सज गईं। ऊँट ना सिर्फ मर्द हजरात जो है वो लेते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि खवातीन भी ऊँट की तरफ खास रुझान जो है वो रखती दिखाई दे रही हैं और कुर्बानी के लिए ऊँट खरीदने आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ईद उल अजहा की अगर बात की जाए तो ईद उल अजहा पे अगर ख़ास जो शौक़ होता है या उनसीयत होती है, हाँ वो लड़कों का या मर्दों का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर मैं ऊँट की मंडी पर आई हूँ, यहाँ पे बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो ऊँट खरीदती दिखाई दे रही हैं। उन्हीं में से एक खातून जो है वो मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे हवाले से मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा ऊँट सबसे ज़्यादा पसंद आया है? एक ये जो हमारे पास है, जिसके पास मैं खड़ी हुई थी, सबसे ज़्यादा पसंद तो यही आया। हाँ, तो रेट क्या देख रहे हो? इसका रेट उन्होंने 7 लाख बताया हमें। 7 लाख बताया। तो आप किसके साथ आए हो? मैंने भाई के साथ आई हूँ। भाई के साथ आई हो, चलो ठीक है। ऊँट तो आप देख रहे हो। कुर्बानी की अगर बात की जाए, कुर्बानी में अक्सर ये होता है कि लड़के जो होते हैं उनको शौक़ होता है अपने अब्बू के साथ जाएँ, या भाइयों को होता है कि ऊँट देखने। लड़कियों का बहुत कम शौक़ देखने को नज़र आता है, शायद मंडियाँ में ऐसे नज़र नहीं आती हैं। नहीं, मुझे एक्चुअली ऊँट पसंद बहुत ज़्यादा है, तो जब भाई ने कहा था कि इस बार ऊँट की कुर्बानी, हमने कहा तो मैंने कहा फिर मैं तो साथ ही जाऊँगी। मतलब ऊँट की कुर्बानी का जानते ही जो है खवातीन जो है वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। एक ज़्यादा खातून मौजूद है, ये ऊँट जो है वो खरीदने के लिए आ गई हैं। आप मेरे साथ और भी कुछ खातून को मैंने देखा। एक खातून से तो हमने जाना कि जो ऊँट खरीदने के लिए आई थी, एक और खातून जो थी वो भी मौजूद थी हमारे साथ, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप मैं देख रही थी आप चल रही थी उनको जिस तरह से प्यार कर रही थी, ना सिर्फ उसको प्यार कर रही थी बल्कि अगर इसके ऊपर वाली झांझरों की बात की जाए, इसको भी आप बहुत प्यारे तरीके से देख रही थी, एक एक चीज़ को, इसके बालों को हाथ लगा के। तो कैसे कहोगे, मतलब क्या शौक़ है? मगर अमूमन देखा जाता है लड़कों में काफ़ी शौक़ होता है, लड़के में बहुत कम पाया जाता है, तो आप इस हवाले से क्या कहोगे? मैं अपने मामू के साथ आई हूँ, तो उनको बहुत शौक़ था, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे भी इस बार लेकर जाएँ मंडी। अच्छा, मतलब ऊँट की कुर्बानी हो रही थी तो खुद को रोक नहीं पाई कि मैं ज़रूर जाऊँगी। अच्छा, ये ऊँट तो माशाल्लाह बहुत प्यारे है। अगर इसकी सजावट की बात की जाए, बनाओ सिंगार के बाद खुद को बहुत खूबसूरत कर लेती है। वैसे ऊँट की माशाल्लाह ऊँट वैसे भी इतना प्यारा होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत हाइटेड, और ऊपर से इसकी सजावट की अगर बात की तो बहुत अच्छी तरीके से की गई है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक इसने गले में जो पहना है, और इसके अलावा अगर ये देखा जाए किस तरह से पीछे तक सजावट है, सजावट से आप जिस तरह से मानूस होते हैं, अभी भी आपसे रुका नहीं जा रहा और आप उसको हाथ लगा रही हैं। सही, तो इसका क्या रेट का है उन्होंने? इसका इन्होंने 6 लाख कहा है, तो हमें तो अभी ज़्यादा ही लग रहा है। अभी भी ज़्यादा लग रहा है? तो क्या इरादा, यही लेना है, इसी पे जिद है कि कोई और ऊँट देखोगे? नहीं, मुझे तो यही पसंद आ रहा है। यही लेना है। मामू से कहना है जी मामू, यही जो ऊँट है यही लड़की को पसंद है, इस खातून को, तो यही जो ऊँट है इसकी अगर देखा जाए सजावट भी बहुत अच्छी है। और मंडी में हमने जितने भी ऊँट देखे हैं ना, ये अगर ऊँट देखा जाए ना, बाकी ऊँटों से काफ़ी मुख्तलिफ जो है वो दिखाई दे रहा है, और बहुत ही खूबसूरत जो है ये ऊँट है। तो मामू आपसे मेरी ही और हमारी भी फरमाइश है कि इस लड़की को यही ऊँट खरीद के दें। ईद उल अजहा से कबल मामू आना मंडी पर बहुत ही प्यारे और दिलकश ऊँट जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जो सर से लेकर पैर तक जो है बहुत ज़्यादा इनकी सजावट जो है वो की गई है।
आने वाले हर शहरी का दिल जीत रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फिल्जा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। मुश्किल माशी हालात, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी बका की जंग लड़ने पर मजबूर। सालाना 31% LSM में कमी रिकॉर्ड, गुज़िश्ता माह से भी 9% से ज़ायद गिरावट का शिकार। सबसे बड़ा वॉल्यूम रखने वाले टेक्सटाइल ग्रुप को एक माह में 33 जबकि माली साल में 17% रिकॉर्ड खसारे का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में मुश्किल माशी हालात ने तमाम सनतों को हिलाकर रख दिया। मुल्की बरामदात का अहम तरीन हिस्सा LSM भी अपनी बका की जंग लड़ने पर मजबूर हो चुका है। मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को तरक्की की बजाय रिवर्स गेयर लगने की रिपोर्ट सामने आ रही है। मजमूई LSM की एक माह में गिरावट 21% रही जबकि गुज़श्ता माह 9% थी। LSM वॉल्यूम 115.46 से 104.65 पर आ गया है। सबसे बड़ा वॉल्यूम रखने वाला टेक्सटाइल LSM भी खसारे के रास्ते पर चल निकला। माहाना वार मुकाबल के मुताबिक 33% गिरावट आई जबकि माली साल में मजमूई गिरावट 17% रिकॉर्ड की गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं गिरावट का सिलसिला चल पड़ा है। चेयरमैन एपमा नवीद गुलजार कहते हैं खसारा रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी क्योंकि LSM का मनफी रुझान अच्छी चीज नहीं। जब डिमांड कम हो जाती है बाहर से, अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो नेचुरली वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। तो वो फैक्ट्रियाँ अभी फ़िलहाल बंद हैं क्योंकि बाहर डिमांड, पाकिस्तान के बाहर जो मुल्क हैं वो उतनी ज़्यादा चीज़ें हमसे नहीं मांग रहे। जैसे ही वो मांगना शुरू होंगे तो ये होपफुली दोबारा इंडस्ट्री चलेगी और दोबारा बेहतर होगी। बिजली की मुसाबकती कीमतें मिल जाएं तो बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। 15 दिन के अंदर सब्ज मसालाजात की कीमतों में तगड़ा इजाफा, रही सही कसर ईद कुर्बान करीब आने पर निकल गई। फैसलाबाद में अदरक, टमाटर, सब्ज मिर्च, धनिया और लहसुन की कीमतें डबल हो गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारू। बढ़ती महंगाई ने आम शहरियों के लिए ईद पर मजेदार पकवान बनाना मुश्किल बना दिया। इससे कबल ही अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन की कीमतें डबल हो गईं। 500 रुपए किलो वाला अदरक थाईलैंड 15 दिनों में 800 से 1000 रुपए किलो हो गया। टमाटर 30 रुपए से 120, धनिया 50 से 200, हरी मिर्च 40 से 100 रुपए और लहसुन 220 से 300 रुपए, आलू 50 से 100 रुपए किलो हो गया। सदर अंजुमन ताजरान शहीन ग्रुप गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज मंडी आमिर जवेद के मुताबिक थाईलैंड अदरक इंपोर्ट करना पड़ता है। कराची में माफिया बैठा है। महंगा पेट्रोल और निर्खनामा वक्त पर ना मिलने पर दुकानदार खुद साख्ता इजाफा कर देता है। टमाटर भी जो ये पंजाब का नहीं आ रहा है, टमाटर इस वक्त पेशावर से आ रहा है। तो अदरक ये थाईलैंड का है, ये कराची से आ रहा है। इसी तरह जो सब्ज मिर्च है ये सरगोदा से आ रही है, को सिंध से आ रही है। रेट लिस्ट शाया करते हैं, ये सदार मंडी की जो बोली होती है उसके मुताबिक खुद साख्ता रेट लिस्ट शाया कर देते हैं। मंडी में आके इंतजामिया रेट चेक नहीं करती। इधर सुबह 5 बजे 4 बजे गुलामाबाद मंडी की बोली होती है। शहरी कहते हैं गली मोहल्लों की निस्बत मंडी में रेट्स मुनासिब हैं, लेकिन सरकारी निरखों के मुताबिक कुछ भी नहीं मिल रहा। ईद कुर्बान सर पर है, जो चाहता है खुद साख्ता महंगाई कर देता है। अगर हम यहाँ पर चीज़ लेने आते हैं, यहाँ हमें जो 60 रुपए में मिलती है ना, वो बाहर हमें 100 रुपए की मिलती है। और यहाँ भी किसी का एक रेट नहीं है, मुख्तलिफ रेट पर मिलती है। कौन से भी दुकानदार के पास आप जाएंगे, अगर एक 100 रुपए की दे रहा है तो दूसरा 120 रुपए की देगा। शहरियों ने जिले इंतजामिया से कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। मिठास दूर हो गई, रोटी छिन गई। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 दिन से चीनी गायब, आटा मिलना भी बंद हो गया। मतवसत तबके की परेशानी बढ़ गई, खवातीन तहफुजात का शिकार। कहती हैं आम आदमी के लिए सुकून से ईद गुजारना भी मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 दिन से चीनी दस्तयाब है, न आटा मिल रहा। ईद से कब खवातीन नई परेशानी का शिकार हो गई हैं। खवातीन का कहना था कि आम आदमी के लिए सुकून से ईद गुजारना भी मुश्किल हो गया है। बस कहते टोकन दे आटा मिलना, हुण नहीं मिलना आटा। सानू जिन्होंने सुबह दे टोकन लए उन्होंने देता, सानू नहीं दिता आटा। कहते सुबह आयो फिर दवांगे। खवातीन का मजीद कहना था कि 6 बजे से लाइनों में लगे हैं, लेकिन अभी तक आटा नहीं मिला। बच्चे सुबह से भूखे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, लेकिन चीजें दस्तयाब नहीं हैं। आम दुकानों पर आटा दस्तयाब होना चाहिए ताकि शहरी बाआसानी खरीद सकें। हमारे बच्चे सुबह से भूखे हैं, सुबह से आए हुए हैं, आटा नहीं मिल रहा। और सुबह 6:30 बजे आए हैं, टोकन 5 बजे कहते हैं आए तो टोकन मिलेगा, 8 बजे दुकान खोलते हैं और कहते हैं टोकन खत्म हो गए। हम जलील होकर यहाँ से चले जाते हैं। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि यहाँ से यूनिट स्टोर से निकाल के आटा और दुकानों पे देना शुरू कर दे।
सफेद पोश तबका ओपन मार्केट से आटा और चीनी खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखता। इंतजामिया को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ तवज्जो दें और आम आदमी को आटे और चीनी जैसी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करें। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ सिल्वा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में बारिश बनी जहमत। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त लेने आई खवातीन ख्वार। बारिश में खवातीन की लंबी लंबी कतारें, धक्के खाने पर मजबूर। आज़ाद जगह न होने से ख्वातीन समेत बच्चे भी बारिश में भीग गए। ख्वातीन की इंतजामिया को दुहाई, कहा मुश्किलात का सामना है लेकिन कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। मजीद जानते हैं मरीम रजा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में होने वाली बारिश ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सहमाई किस्त लेने आई खवातीन को खवार करके रख दिया। खवातीन की लंबी लंबी कतारें, धक्के खाने पर मजबूर। बारिश ने भी काम खराब कर दिया। सायादार जगह न होने की वजह से खवातीन समेत बच्चे बारिश में भीग गए। ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਅਗਾ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਰ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ तो ਉੱਥੇ पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जासन। हम सुबह से आए, हम रोजाना किराया लगा के आते, रोजाना किराया लगा के जाते, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं, गेट ही नहीं खोलता। रोजाना ऐसे हमारे साथ होता है। कहते थे अभी नहीं है, अभी ने कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कह, कोई बात सुनता ही नहीं। वो पुलिस वाले धक्के दे के बाहर से निकाल देते। खवातीन की इंतजामिया को दुहाइयां, कहते हैं मुश्किलात का सामना है लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनने को तैयार। इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया का हमारे साथ सलूक बुरा है। सिटी 41 से गुफ्तगू के दौरान बुजुर्ग खातून आबिदा हो गयी। कहा बेवा हूँ, सुबह से यहाँ धक्के खा रही हूँ। बेटा सुबह मैं 5 बजे दी आई, मेरा 12 दिन हो गया मीटर कर दिया। मैं मीटर वास्ते सानू कोई पूछदा ही है धक्का मैं बेवा नहीं हजे टाइम हजे नहीं। मैं 3 बजे दी घरों निकलिया, किराया मेरे को कोई ना, मैं मोटरसाइकिल हाथ दे के आई हूँ। मैं यतीम, बच्चे मेरे यतीम ना, मैं किराया देना मालिक मकान में करता। फैसलाबाद में बरसने वाली रहमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आने वाली खवातीन के लिए जहमत बन गई। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एंट्री टेस्ट को कमाई का जरिया बना लिया। एंट्री टेस्ट की फीस 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई। टेस्ट में पास हो या ना, एडमिशन प्रोसेस की 1500 रुपये फीस भी एंट्री टेस्ट के साथ ही जमा कराना होगी। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट को ही कमाई का जरिया बना लिया। एक तरफ तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एंट्री टेस्ट की फीस 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी, तो दूसरी तरफ उम्मीदवार टेस्ट में पास हो या फेल, उसको एडमिशन प्रोसेस की मद में भी 1500 रुपये फीस एंट्री टेस्ट फीस के साथ ही जमा करवाना होगी। तर्जुमान यूनिवर्सिटी डॉक्टर जलाल आरिफ कहते हैं, जब कोई तालिब इल्म यूनिवर्सिटी दाखिला के लिए रजू करता है तो उसका दाखिला प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो टेस्ट पास करे या ना करे, उसका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास महफूज हो जाता है। इसलिए एंट्री टेस्ट के साथ ही एडमिशन प्रोसेस फीस भी वसूल की जा रही है। जो एंट्री टेस्ट है ये रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए, कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए प्री रेक्विजिट है, प्री क्वालिफिकेशन है, मिनिमम नंबर लेंगे फिर आपके लिए ये है, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी एडमिशन ग्रांटेड नहीं है। तो ये जो है GRE की फीस है और एडमिशन प्रोसेसिंग की फीस है। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर मुयस्सर मालूमात के मुताबिक उम्मीदवार को स्पोर्ट्स, हम निसाबी और सेल्फ फाइनेंस के कोटा पर अप्लाई करने की फीस भी एंट्री टेस्ट के साथ ही जमा करवाना होगी। ओपन मेरिट पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवार को एंट्री टेस्ट के लिए कम से कम 3000 रुपये फीस जमा करवाना होगी, जबकि वो उम्मीदवार जो किसी कोटा पर भी अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 4500 रुपये तक फीस जमा करवाना होगी। वालिदैन ने एंट्री टेस्ट की फीसों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ, अस्पताल इंतजामिया की मिली भगत से मरीजों को लूटने के इल्ज़ामात। कमिश्नर ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर नोटिस लेते हुए अस्पताल इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुबैना बेज़ाब्तियाँ, हॉस्पिटल इंतजामिया की मिली भगत से मरीजों को लूटने के इल्जामात। कमिश्नर ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर नोटिस लेते हुए हॉस्पिटल इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली। MS कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल डॉक्टर राना नदीम का कहना था, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर वजाहत जमा करा रहे हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने शाम के औकात में हॉस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत दे दी। प्राइवेट प्रैक्टिस की कमाई से पैसे हॉस्पिटल में भी जमा कराए जाते हैं। हॉस्पिटल में अमले की कमी नहीं, सिर्फ बेहोशी वाले सर्जन की कमी है। इस
इस हवाले से महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के साथ राब्ते में है। एको और एक्सरे मशीन मुकम्मल तौर पर फाल है। शोबा बैरूनी मरीजा में अद्वियात भी मौजूद है। सिक्योरिटी गार्ड का गैर जिम्मेदाराना रवैया, पार्किंग से मुतालिक जायद फीस वसूली की शिकायत पर कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी ईद में 2 दिन बाकी, फैसलाबाद की मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया। बड़ी ईद की तैयारी के लिए लड़कों ने भी कमर कस ली। फैसलाबाद मंडे पेंट शर्ट की खरीदारी में मसरूफ, कहते हैं दोस्तों के हमरा ईद की खरीदारी का लुत्फ ही अलग है। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से इस हवाले से। जी अरसलान, बताइए। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा पर अच्छा दिखने के लिए लड़कों ने भी तैयारी पकड़ ली है और शॉपिंग का आगाज़ कर दिया है। मुख्तलिफ जो मार्ट्स हैं, जो मार्केटें हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं और पैंट शर्ट्स जो हैं वो ख़रीद रहे हैं अपने लिए। आल्दो ज़्यादातर टाइम जो लड़कों का गोश्त बांटने में ही निकल जाता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी जो मेंटेनेंस है वो भी करनी होती है, खूबसूरत भी दिखना होता है, नए जो कपड़े हैं वो भी पहनने होते हैं। यहाँ पर मौजूद भी लड़के, उनसे बात भी करते हैं, क्या कहते हैं। हाँ जी, बताएँ क्या लेने के लिए आए हैं? खरीदारी करने के लिए आए हैं। ये शर्ट पसंद की है। ईद के लिए पसंद की? जी, ईद के लिए। तो अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा और क्या क्या लिए? इसके अलावा जीन्स पैंट्स ली हैं, एक ये ब्लैक जीन्स की है, एक ये ग्रीन बेल्ट वाली है। अब इनके साथ शर्ट्स लेनी है, अभी फिलहाल टी शर्ट्स देख रहे हैं। तो ईद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया। जी बिल्कुल, जो नौजवान है वो अपनी अपनी पसंद की जो शर्ट्स हैं वो खरीद रहे हैं। और भी मौजूद है, आप बताएं जी, आपने क्या खरीदा है? अभी तो फिलहाल भाई देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हो? शर्ट देख रहा हूँ, टी शर्ट बर्बर। क्या टी शर्ट लोगे, क्या लोगे? टी शर्ट लूंगा, साथ जीन्स लूंगा, इसके साथ साथ वाइट शूज पहनेंगे इसके साथ। बिल्कुल, फैसलाबादी जो है लड़के वो ईद पर बिल्कुल हीरो दिखने के लिए अपनी पसंद के जो कपड़े हैं वो खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। तो ईद की जो शॉपिंग है उसका बाकायदा आगाज़ तो 4-5 दिन पहले ही हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि कुछ ही दिन बाकी हैं, 2 ही दिन बाकी हैं, तो जो फैसलाबाद के नौजवान हैं, लड़के जो हैं वो भी खूबसूरत दिखने के। अरसलान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नफरत इंसान से नहीं, जुर्म से की आला मिसाल। डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन की हिदायत पर हवालातियों के लिए जिला के तमाम थानों में एयर कूलर लगा दिए गए। टोबा टैक्सिंग में हवालातियों को गर्मी और हबस से महफूज रखने के लिए इक़दाम जारी हैं। डीपीओ सैयद करार हुसैन की हिदायत पर जिला के तमाम थानों में एयर कूलर लगा दिए गए। इसके बाद गर्मी का एहसास कम हो गया, हवालातियों ने सुख का सांस लिया। टोबा टैक्सिंग में थानों के साथ साथ पुलिस चौकियों में भी एयर कूलर फराहम किए जाएंगे। ASP सबरा अयूब का कहना था कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। थानों में पुलिस का रवैया और माहौल बेहतर किया गया है। थानों में एयर कूलर फराहम करने का मकसद इंसानियत का तकाजा है। तो शदीद गर्मी की हालत में हम तो अपने रूम्स में AC लगा लेते हैं और आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन जो ये यहाँ पे लॉकअप्स में बंद है, इनको शदीद परेशानी जो है वो दरकार थी। डे टू डे बेसिस पे मसले आ रहे थे, तो तमाम ज़िले में तमाम लॉकअप्स में एयर कूलर लगाए गए हैं। शहरियों ने थाने में एयर कूलर फराहम करने के इकदामात को सराहा है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। 9 मई के वाक़यात के बायस दर्ज मुकदमात का मामला सेक्रेटरी फैसलाबाद बार राना MA बाबर खान की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने केस की अगली समाअत पर पुलिस रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के खसूसी जज मोहम्मद हुसैन ने समाअत की। केस आइंदा समाअत 10 जुलाई को होगी। पुलिस रिकॉर्ड ना होने की वजह से कोई पेशरफ्त ना हो सकी। सेक्रेटरी बार राना MA बाबर खान का कहना था, हम पुरअमन लोग हैं, मगर हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, इस जबर के दौर में सुरखरू होंगे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली नान कमर का अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी का दौरा। लाइब्रेरी का तामीराती काम जल्द मुकम्मल करके लाइब्रेरी को कुतुब-बीनी के शौकीन अफराद के लिए खोलने का हुक्म दे दिया। लाइब्रेरी के तामीराती कामों में सुसरवी होने पर डिप्टी कमिश्नर अली नान कमर ने बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था, ईद के बाद हंगामी बुनियादों पर लाइब्रेरी का काम मुकम्मल किया जाएगा और अगर काम की रफ्तार ना बढ़ाई गई तो खुद खड़े होकर काम करवाऊंगा। अली नान कमर का मजीद कहना था, कुतुब-बीनी के शौकीन अफराद और तलबा व तालिबात लाइब्रेरी खुलने के मुंतज़िर हैं, जिसे जल्द अज जल्द ताज़ीन व आराइश के बाद खोला जाएगा। मंशियात की रोकथाम का आलमी दिन। NGO होम टाउन कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम TMA हॉल फैसलाबाद में तकरीब का इनेकाद। CTO मकसूद लॉन और DSP तौसीफ की ख़ुसूसी शिरकत। इस्तेमाल और इसकी स्मगलिंग की रोकथाम आलमी दिन। NGOs होम टाउन कम्युनिटी की जानिब से TMA हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया। CTO मकसूद लॉन, DSP तौसीफ, CO एजुकेशन काशिफ ज़िया और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा की शिरकत। सोशल वेलफेयर के डिविजनल डायरेक्टर मुजम्मिल यार, NGOs अलाइड हॉस्पिटल 2 की डॉक्टर्स भी शरीक हुई। डॉक्टर समरीन कहती हैं कि हमारी नौजवान नस्ल नशे को फैशन के तौर पर इस्तेमाल करती है। बच्चों में इस चीज़ की आगाही देनी कि इस ग्लैमर, इसको जिसको जितना ग्लैमराइज
کیا جاتا ہے یا فیشن کا سمبل بنایا جاتا ہے، یہ کتنے ہیزرڈز ہیں، اس کا حوالے سے سب کو ایک اویئرنیس دینی چاہیے. پیرنٹس کو ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں، کن دوستوں سے مل رہے ہیں، ان کی کمپنی کیا ہے. سیمینار میں نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت کے بارے میں آگاہی دی گئی. مقررین کا کہنا تھا کہ گھروں میں والدین کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں ان سب کو اویئرنیس کے لیے کہ ہم لوگ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح ہم ایموشنلی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ جس طرح ہمارے ایک اسٹگما ہے پورے انوائرمنٹ میں پھیلا ہوا، اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. اس دن کو منانے کا مقصد انسداد منشیات سے آگاہی اور شعور فراہم کرنا ہے. منشیات کے استعمال کی روک تھام، غیر قانونی تجارت کا خاتمہ، منشیات کا گھنونا دھندا کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے. کیمرامین محمد جنید کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد. ٹوبہ پولیس تحفظ سینٹر مظلوم افراد کی داد رسی کے لیے کوشاں. پولیس کی جانب سے مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم. 4 خواتین اور 1 خواجہ سلام میں سلائی مشینیں تقسیم کی گئیں. تفصیلات جانیں مبشر حسن نقوی کی رپورٹ. ٹوبہ پولیس تحفظ سینٹر مظلوم افراد کی داد رسی کے لیے کوشاں. شہریوں کو ثمرات حاصل ہونے لگے. پولیس نے 4 مستحق خواتین اور 1 خواجہ سرا میں سلائی مشین تقسیم کی تاکہ وہ باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں. ASP احمد رسول اللہ ملک اور صابرہ ایوب نے سلائی مشینیں تقسیم کی. جیسے کہ تحفظ مراکز کے قیام کا مقصد ہمارے جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کو انٹرٹین کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے. تو ہم نے جو ہے اس جو ہے نا پرابلم کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے آج 5 سلائی مشینیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. ASP احمد رسول اللہ ملک کا کہنا تھا کہ تحفظ سینٹر میں آنے والے ہر شخص کی مدد کی جا رہی ہے. مستحق خواتین کو سلائی مشینیں فراہم کر دی ہیں تاکہ ان کی معاشی مشکلات میں کسی حد تک کمی ہو سکے. تحفظ سینٹر نادار اور مستحق کمیونٹی کی بحالی کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہا ہے وہ دیگر اداروں کے لیے مشعل راہ ہے. شہریوں نے تحفظ سینٹر کے قیام کو خوش آئند قرار دیا اور IG پنجاب کے اقدام کو خوب سراہا. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹک. جنگ کے سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محمد نذیر سلطان مرحوم کی زوجہ اور رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ محمد امیر سلطان کی والدہ مرحومہ کی روح کے اصال کے لیے کلخوانی اہم شخصیات نے شرکت کی. مرحومہ کی روح کے اصال ثواب کے لیے دربار حضرت سلطان باہو سے ملحقہ ڈیرے پر کلخوانی کا اہتمام کیا گیا. دعائے مغفرت کی محفل میں سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محمد محبوب سلطان، صاحبزادہ محمد حبیب سلطان، رہنما جماعت الصالحین صاحبزادہ سلطان محمد علی، صاحبزادہ نجیب سلطان اور صاحبزادہ منیب سلطان اور دیگر صاحبزادگان نے بھی شرکت کی. اس موقع پر زائرین اور مریدین کی بڑی تعداد موجود تھی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.